Okay, so let's begin with the connectors. The first and the most important connectors in essays for listing points. Like when you say something like there are many reasons for something, there are several advantages, drawbacks, and then you have to list down those points like one, two, three, four, like that. So what are the connectors we use there? So I have listed it down in a way like I've listed a connector for the first point, then for the second point, and then for the third point in that way. And I don't normally write more than 3 points for any particular essay because in IELTS, the number what's more important is the discussion of points or the elaboration of points than the number of points. So if you write too many points, it won't fetch you that many bands. So it'll be better to write less points and elaborate your points. So no more than three, and let's start with it. So for the very first point, I use these connectors. So I use either firstly, or to begin with, or to start with, first and foremost, or the primary reason is that this connector you might have to change. For example, if it's an advantage disadvantage essay, you'll have to write the primary advantage is that, or the primary benefit is that. Then one key argument is that a good connector for agree disagree essays or discussion essays where you're giving the reasons why people agree or disagree with something, or discussion essays. So these are the connectors I use. Now you don't need to remember them all. So probably have a set, whichever point, whichever connector you like the best, you can keep it for your essay for your first point. Firstly, to begin with, to start with. One mistake that students make in this connector is that they give a connector before the first paragraph, which doesn't make sense. For example, let me show you what students normally do. So they'll do something like, um, firstly, there are many reasons, there are many reasons why people agree or why people disagree with something, with this view or something like that. And then they'll say to begin with, or one, the primary reason is that. I just want to tell you this firstly is not correct. It's redundant. It is not needed. We are going to give these connectors for the points. There is no connector at the beginning of the paragraph. It starts when you're giving your first point. If you're giving your first point in the very first line, then it's fine. But if you're giving your first point in the second line, it should come there. It should not come before that. So please make sure that you don't misuse this connector at the beginning of a paragraph just because it's the first paragraph. Otherwise, nothing much to teach here. For the second point and the third point, I use these connectors. For example, secondly, or in addition, furthermore, moreover. Another significant reason is that here also students make a very particular mistake. They put two articles. For example, another already has an article and they'll put the before and. So that is wrong. Make sure you don't make this mistake. A further argument is that besides this, what is more additionally. Remember, what is more is also a formal connector and you can use it in your essays. So all of these connectors, you can use it. Again, you don't need to remember. You will have this file. You can pick up a connector that you want to use for the second point. Anything. And you can have particularly, I would say have two, three sets. For example, if you get an advantage, disadvantage essay, you're going to write both advantages and disadvantages. So have one set for your advantages, connectors. Like for that set, you can have firstly, then you can have furthermore, and then you can have finally. And for the second set, you can have to begin with and in addition. So something like that. That's what I'm saying. Like have sets. Like this is one of my sets, then have another set of connectors for the other side. So have two sets of connectors. You don't need to remember all of them, but you can make a list whichever ones you want to use and do these connectors in the form of a set. Set one, set two, set three. You can probably remember two or three sets. Okay. Another for the third one, thirdly, additionally, moreover, a final point to consider is that if your third point is the last point, generally it's the last point, like I said, but in some cases you might have 4 points. So not in that case.
Okay, so the easiest connector and the most important connector is done for. Let's move forward. The second connector, which students find difficulty is for elaboration or for an example. Like you want to elaborate a point. Now, remember, this connector is not necessary, but in some cases, you want to put a connector there. For example, if you're just explaining that point in other words, like you've given a point, now you want to explain it. For example, you have said like telecommuting saves time. Now you want to explain how it saves time. In other words, people don't need to spend time on traveling to the workplace, and thus they save a lot of time. So you're explaining your first point itself in some other words. So you can use this as a connector after your first point to elaborate it. You can also use it to put it simply. You can use to elaborate. You can say in essence. These are the connectors I use. I don't use the bottom three ones. I use for instance, but that I use for giving an example when I'm using an example to elaborate something. Otherwise, I don't use these connectors. In fact, and to be more precise, I don't use it that often. Okay, so these are for elaborating a point. I will also do some examples later on just to show you. Now, connectors for giving example. Very simply, for example, for instance, one thing that I want to illustrate, don't use them in the middle of the sentence. Always use both of these connectors at the beginning of a sentence. For example, your point ends, put a full stop, then write, for example, this happens in this country or something like that. Let me show you with an example. For example, let's take um, so um, the first step the government should do to reduce, should take to reduce pollution is to introduce faster means of public transportation. So I've just given a point that government should introduce faster means of public transportation to reduce pollution. And then you can give an example. For example, the pollution levels in Delhi fell significantly after the um, coming of metro, after the coming of Delhi Metro. So you can give an example like that. So I've given you how to use this connector. I always use it in a new sentence. I don't put it in the middle of a sentence. I would not, for example, put it like in the middle, like this, comma, for example. It doesn't work like this. So, for instance and for example are always used to um, begin a sentence. Such as is used in the beginning, such as you can give an example. Very simple. When there are short examples, you can say, for example, government can introduce faster means of public transportation, such as metro or so on, like that. So here, such as could have been used, such as metro or something else. Okay, one notable example, especially you can talk about when you have a particular example, then you can use that example. So all of these words I use for giving examples. These are the words I use for elaborating a point. When I've written a point, I just want to elaborate it further. Then I use these connectors. So these are the two cases. Let's go to the next one. For consequences, when something is a result of something. Uh, See, here I did not give examples because I thought these are pretty simple and you can understand. In this case, I'm going to give you examples also. For example, how to use these connectors. I am doing that. I do this when I write something and I want to say uska result kya hota hai? What is the result of that? Or what is the effect of this? For example, let's take this example. The government invested heavily in renewable energy. Consequently, the country witnessed a significant decline in carbon emissions. So, how am I using it? First, I give a point and then I give its result. And I start that line by using consequently. Same thing with as a result.
Many students lack proper guidance at home. As a result, their academic performance tends to decline. So they don't get proper guidance. And what is the result of this? As a result, their performance declines. As a consequence, same word. Therefore, same word. As a result, does also does the same thing. For example, the company adopted strict quality control measures. Thus, customer satisfaction improved considerably. So you can use all of these words, very, very good words to use. And I'm just listing them down so that you have them in your vocabulary and you can use them to improve your writing. Okay. Let's go on to the main part of the class now, where you make mistakes and where I have to spend a lot of time, which are the concession and contrast connectors. So first of all, I want to ask you, if you know this, what is the difference between a concession connector and a contrast? What is the difference between concession and contrast in the first place? Concession क्या होता है? Contrast क्या होता है? Where do I use a concession connector? Where do I use a contrast connector? So contrast is like opposite side. Yes, and what is concession? So about concession, I don't have any particular idea about it. Okay, सर so कंसेशन उसी चीज के साथ लिंक होता है हाँ लाइक जैसे आपने वो पहले एग्जांपल लिखी ऑल्दो द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेंसिव बट हाँ इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव पब्लिक सेफ्टी। हाँ ये दोनों चीजें रिलेटेड है पर उसका प्राइस ज्यादा है उसको उस चीज को हाईलाइट करने के लिए हमने ऑल्दो या फिर इस ऐसे कनेक्टर्स को हम यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं तो उसमें हम ऑन कंट्रास्ट जब लिखते हैं फिर आई थिंक वो दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं फिर कि उसमें पब्लिक सेफ्टी है की बात होगी और दूसरी साइड बोलेंगे कि पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव नहीं हुई है। okay. दैट्स व्हाट आई गेस लाइक आई एम नॉट 100% Okay. श्योर दो। Okay. So you are right in some ways, but let me just clarify it properly so that you're very clear. See, concession तब होता है जब हमारा एक main point हो. For example, let's see. I believe the advantages are more. पर मैं ये भी मानता हूँ कि नुकसान भी हैं. सी अब यहाँ पे दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एडवांटेजेस का उल्टा ही होता है डिसएडवांटेजेस बट मेरा एक मेन साइड है माई मेन साइड इज दैट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं मैं मान रहा हूँ डिसएडवांटेजेस हैं आई एम एडमिटिंग टू देम मैं कंसेशन दे रहा हूँ मैं मानता हूँ ये बात है बट मेरी मेन साइड है कि ये साइड है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना था अब मैं ये कहना चाहता हूँ फ्लाईओवर के कारण जो जो रोड के साइड पे शॉप्स होंगी दे विल लूज बिजनेस रोड साइड शॉप्स विल लूज बिजनेस बट स्टिल भी मुझे फिर भी ये लगता है कि फ्लाईओवर बनना चाहिए सी नाउ आई हैव अ मेन साइड आई एम सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बट आई एम गिविंग अ कंसेशन कि उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी ठीक है सो लाइक दैट ठीक है सो सो लाइक दैट कंसेशन वाले में हमारा एक मेन साइड होता है मतलब कंट्रास्ट में हमारा कोई मेन साइड नहीं होता कंट्रास्ट में एक साइड होता है दूसरी साइड होता है फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल पंजाब रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल ठीक है बाय कंट्रास्ट केरला रिसीव्स अ लॉट ऑफ or Kerala receives a lot of rain. So I'm just comparing two things. I don't have a main side. मेरा कोई main side नहीं है. मैं किसी एक side की तरफ झुका नहीं हुआ हूँ. So मैं बस ये कह रहा हूँ कि केरला में पंजाब में कम होता है केरला में बहुत ज़्यादा होता है. So that is it. But वहाँ पे तुम्हारा एक मेन साइड है तुम दूसरी साइड को एडमिट करते हो पर तुम्हारी एक मेन साइड है दैट्स द मेजर डिफरेंस एंड आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ रेड which creates let me just fix this okay so that's the major difference there is no main side when I'm using comparison connectors but when I'm using contrast connectors or comparison words but concession में एक मेन साइड होती है फॉर एग्जाम्पल हालांकि न्यू पॉलिसी एक्सपेंसिव है उससे पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव हुई है सो यू नो माई मेन पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सेफ्टी तुम्हें पता है कि मुझे मैं ये बात मैं एडमिट कर रहा हूँ कि महंगी तो थी पर अच्छी थी अब देखो अच्छी थी इज माई मेन पॉइंट आई एम सपोर्टिंग द पॉलिसी अब तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे मैं पॉलिसी को क्या कर रहा हूँ
बताओ, when you read this line, you know I'm supporting the policy. I'm not against the policy. You know that. So my main side is towards the policy. But I'm admitting कि वो महंगा था. ठीक है, जैसे मैं एडमिट करता हूँ कि यू नो कनाडा एक्सपेंसिव है, बट इट इज़ बेटर देन इंडिया. अब स्टिल आई एम फेवरिंग कनाडा इन दैट रिगार्ड. अब तुम सबने जाना है बाहर और यू गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री. सी, आई एम एडमिटिंग दैट इट्स एक्सपेंसिव. मैं उसकी कोई प्रॉब्लम मान रहा हूँ, मैं एडमिट करता हूँ. पर आई एम जनरली इन फेवर ऑफ इट. एंड आई कैन एडमिट कि कनाडा में या सोशल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं. पीपल आर नॉट दैट सोशल मे बी. बट people can earn more, but I still favor going there. मैं still उसकी फेवर में रहूँगा एक साइड. तो तब कंसेशन होता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अम, देखो, कंपनी ने सिटी ने इंट्रोड्यूस करा ट्रैफिक रूल्स, पर फिर भी कंजेशन प्रॉब्लम रही. मतलब कंजेशन खत्म नहीं हुई. अभी मैं मान रहा हूँ कि सिटी ने कुछ करा है, पर मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरा मेन ओपिनियन तो रहा कि फिर भी प्रॉब्लम है, ये नहीं है. आई डोंट थिंक सिटी ने जो करा वो इफेक्टिव था. सो आई हैव अ मेन साइड. सो दैट्स व्हेन वी यूज कंसेशन वर्ड्स. एक पार्शियल एसेस में नॉर्मली तुम ये कंसेशन वर्ड्स यूज करने वाले हो. जैसे कि जब तुमने बोलना है एग्री करना है, पर तुमने बोला हाँ दूसरी साइड भी है, पर मैं एग्री करता हूँ. तुमने बोलना है इसके कुछ नुकसान है, पर इसके कुछ फायदे हैं, पर तब भी मैं इसको बैन करना चाहता हूँ. इसके कुछ नुकसान है, पर फिर भी मैं इसको बैन नहीं करना चाहता हूँ. मतलब तुम्हारा एक मेन साइड है. सो पार्शियल एसेस, एग्री डिसएग्री एसेस, और एडवांटेज डिसएडवांटेज एसेस में भी तुम ये यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल कि थोड़े बहुत नुकसान है, पर मेरे को लगता है ओवरऑल ये पॉजिटिव है. थोड़े बहुत फायदे हैं, पर ओवरऑल ये नेगेटिव है. अब तुम्हारी मेन साइड है कि ओवरऑल नेगेटिव है. दीज आर द प्लेसेस वी आर यूजिंग अ कंसेशन. एंड अगर मैं कंपैरिजन बोलूँ तो जस्ट नॉर्मल, मतलब यू आर जस्ट सेइंग. ठीक है. जैसे कि मैनी पीपल प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम, ऑन द अदर हैंड अदर्स फाइंड इट आइसोलेटिंग. कुछ लोगों को पसंद है, दूसरी तरफ कुछ लोगों को नहीं पसंद है. दैट्स इट. आई एम कंपेयरिंग अर्बन रीजन्स विद रूरल रीजन्स. अर्बन रीजन्स में बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है. रूरल रीजन्स मेनली डिपेंड ऑन प्राइवेट व्हीकल्स. देर इज़ नो, मतलब आई एम नॉट फेवरिंग वन साइड. कहाँ यहाँ पे कहाँ किसको फेवर कर रहा हूँ? मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ. मैं अर्बन की भी बात कर रहा हूँ, रूरल की भी बात कर रहा हूँ. नॉर्दर्न रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, इन कंट्रास्ट सदर्न रीजन रिमेन ड्राई. जैसे कि अब मैं बोलूँगा नॉर्थ में ठंड है, पर साउथ में गर्मी है. किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई मेन साइड नहीं है, बस मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ. लाइक दैट. सो if I just properly list it down, तो कंसेशन यूज होता है जब तुमने एक पॉइंट को तुमने बताना हो कि तुम मानते हो कि वो प्रॉब्लम है, पर तुम अपना मेन पॉइंट फिर भी रख रहे हो. तुम उस प्रॉब्लम के बावजूद तुम अपने मेन पॉइंट के साथ स्टिक कर रहे हो. कंट्रास्ट में बस टू डिफरेंट आइडियाज के बीच में तुमने डिफरेंस बताना है. यू आर नॉट फेवरिंग वन साइड एट ऑल. किसी एक साइड को फेवर नहीं करते हो. कंसेशन में एक मेन आर्ग्यूमेंट ज़रूर होता है, कंट्रास्ट में मेन आर्ग्यूमेंट नहीं होता. कंसेशन पार्शियल एसेस में या बैलेंस्ड एसेस में, तो जहाँ पे तुमने दोनों साइड्स बतानी है, वहाँ पे यूज़ होता है. कंट्रास्ट इन जनरल कंपैरिजन यूज़ होता है व्हेन डिस्कसिंग टू थिंग्स विदाउट फेवरिंग वन. सिग्नल वर्ड्स जो हैं कंसेशन के लिए, मैं कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करता हूँ? आई यूज़ ऑल दो, वाइल इट इज़ ट्रू, एडमिटेडली, डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस. और कंट्रास्ट के लिए आई यूज़ वर्ड्स लाइक however, on the other hand, in contrast, conversely, nevertheless, nonetheless are words but I don't use it. वो both the places में यूज़ हो जाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई है. नाउ व्हाट, जस्ट टू अंडरस्टैंड whether you have understood my point or not, I'm going to give you two examples and you are going to tell me which is a concession word, which is a comparison word. चलो अब मैं टाइप कर रहा हूँ. um,
Okay, in both the cases, I've used a while. अब बताओ, the first while is a comparison or a concession, and the second while is a comparison or a concession. कि दोनों ही First one is हाँ, first one is comparison, second one is concession. yeah. All of you are clear? देखो, फर्स्ट में देर आर टू व्यूज. आई डोंट हैव अ मेन व्यू. आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू पीपल. कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, कुछ को अदर चीज पसंद है. सेकंड वाले में मेरा एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं दूसरी साइड के साथ थोड़ा सा एग्री करता हूँ. मैं मानता हूँ कि ड्रॉबैक्स हैं, पर मुझे लगता है वो बेनिफिशियल है. सो आर ऑल ऑफ यू क्लियर विथ कंसेशन एंड कंट्रास्ट का डिफरेंस? Yes, sir. यस. व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर? Yes, sir. यस. ओके. सो अब लेट्स डू इट. अब हम करते हैं कि हम क्या इसके मेन पॉइंट्स ये हैं. कंसेशन आर्गुमेंटेटिव एसेस में, कंट्रास्ट डिस्क्रिप्टिव एसेस लाइक कंपैरेटिव एसेस, डिस्कस एसेस में कंट्रास्ट होता है क्योंकि तुम दो साइड्स बताते हो. तुम ना तो एक के साथ एग्री कर रहे हो, ना तो दूसरी के साथ एग्री कर रहे हो. दोनों जगह यूज़ होते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नो दीज आर द कनेक्टर्स दैट आई फील आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एसे. बस ये कनेक्टर्स हैं. इसके अलावा थोड़े से और कनेक्टर्स हैं विच आई फील दैट यू शुड नो, विच आर फॉर गिविंग कंक्लूजन, विच आर फॉर कंक्लूडिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, व्हाट्स द कनेक्टर यू यूज फॉर कंक्लूडिंग योर एसे, एंड लेट्स सी वेदर दे आर राइट और नॉट. ऑल ऑफ यू हैव रिटन एसेस. तुम क्या लिखते हो एंड में, तुम बताओ. To conclude, हाँ, टू कंक्लूड इज परफेक्टली ऑल राइट. एनीवन एल्स? In conclusion is also perfectly all right. Anyone uses something else, तो बताओ. So when I was younger, I used to put it in a nutshell. Nutshell क्या होता है? छोटे में कहना. Now, do you think it's a good connector? Yes or no? it sounds bit of informal. Like although it's really good, but I'm not 100% sure. नहीं तो clearly बता. Good connector or Sir, bad? connect to the good है, but informal थोड़ा ज़्यादा sound होता है. ठीक है. So you're absolutely right. इट्स नॉट गुड फॉर आईएलटीएस. तो मैं ये बहुत बताना चाहता हूँ. मैं ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिए जस्ट टू शो दैट डोंट ट्राई थिंग्स, बी सिंपल. एंड आईएलटीएस राइटिंग इज सपोज टू बी फॉर्मल. अब तुम इनफॉर्मल जाओगे, यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स. सो डोंट ट्राई टू बी लाइक डिफरेंट. जस्ट बी नॉर्मल. You will score really well. I promise you. I have written simple essays and scored really well. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे बैंड स्कोर करे हुए हैं सिंपल लिख के. तो वाई वुड आई आस्क यू टू राइट समथिंग डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और डू समथिंग स्पेशल? ओके, सो जस्ट बी सिंपल, राइट योर पॉइंट्स, यू विल फेच गुड बैंड्स. Okay, so now we do what? We'll take up an essay and we'll purposely use all the connectors. We'll try to use the connectors in a way we can ताकि हम उसको understand कर पाए. ठीक है. So we are going to take up an essay and we are going to see what kind of points connectors we are using and what kind of connectors that person has used. Then we can first let's take a 9 band essay. तुम मेरे को वहाँ पे connectors बताना उसने क्या क्या use करे. Are they good connectors? Are they different from the connectors we have discussed? And what could be done better? And then we'll write one essay on our own and we can practice these connectors as well. So पहले हम ये करते हैं. ठीक है. So I prefer, uh, एक randomly I'm taking a sample essay. So let's just cover that. Okay. So I've taken a sample essay. This is the essay. Um, some people consider price as the most important thing about when buying a product or a service. Do you agree or disagree? कुछ लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जब वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं, तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है जो वो सोचते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सोचने के लिए उनके हिसाब से प्राइस है. डू यू एग्री और डिसएग्री? ये क्वेश्चन है. ठीक है. सो फर्स्ट शी इज जस्ट इट इज थॉट बाय सम पीपल के प्राइस सबसे असेंशियल चीज़ होती है. शी इज़ गिवन हर ओपिनियन. उसके बाद she has written this statement: while I agree that price does play a role, there are other factors that can influence a person. So tell me, she has used while. Is it a comparison word or a contrast word here?
You can see the screen, yes or no? Yes? Yes, we can see the screen, sir. It's a concession. Like, Concession although हुआ है. Karen, yeah, Concession. अच्छा, हमारा मेन ओपिनियन क्या है? Price keep does play price. important role. हाँ, ओके. प्राइस प्राइस के फेवर में है कि नहीं, अदर? मतलब वो कह रहा है कि प्राइस है, पर प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. हाँ, पहले तो मुझे ना ऐसे ही वही. पसंद. I don't agree with her ऐसे a lot because she is not clear what is the main factor. So she said price भी फैक्टर है, बाकी भी फैक्टर्स है. तो मुझे तो Yeah. क्वेश्चन था कि सबसे हम्म. इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है. मुझे तो उसने जवाब ही नहीं दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, मतलब प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. सो आई डोंट लाइक दिस ऐसे. बट ठीक है, माई ओपिनियन कैन वेरी फ्रॉम हर एंड इट्स ओके. पर चलो ठीक है. सो आई थिंक इट्स अ कंसेशन वर्ड, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, पर मेरे को पता नहीं चल रहा मेरा ओपिनियन क्लियरली क्या है, प्राइस की फेवर में कि अदर फैक्टर्स के ओपिनियन में है. सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड है. बट लेट्स गो. Here she has used firstly. I don't like using it here. I like using it when we are giving the first reason. But ठीक है, उसने use करा है. Firstly उसने बात करी है price की. When deciding whether or not to buy something, people will invariably consider if they can afford it. उसने affordability की या price की बात करी है. She's given the example of something. This is again a connector, taking the example of cell phones. ठीक है, फर्स्टली यूज करा है, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सेल फोन्स. उसने अपना पॉइंट समझाया है. दीज आइटम्स वेरी, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि सेल फोन्स की प्राइस वेरी करती है. कुछ 100 पाउंड से भी कम होते हैं, कुछ 1000 पाउंड से भी आज होते हैं. इन दिस केस पीपल ऑन मॉडरेट और लो इनकम्स आर अनलाइकली टू चूज अ मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. तो मॉडरेट इनकम और लो इनकम वाले बहुत कम चांस है कि वो हाई एंड प्रोडक्ट लेंगे या महंगा प्रोडक्ट लेंगे. However, price becomes less important for items or services that offer excellent quality. अच्छा, उसका ओपिनियन पता क्या है? उसका ओपिनियन क्लियरली है कि कुछ चीज़ों में price is the main factor, but other चीज़ों में other factors are more important. So she is not saying कि हर एक चीज़ में price सबसे important है. So her opinion, if I understand it now, I think she is trying to say in some purchase decision, in some cases, ठीक है, जैसे कि सेल फोन हो गया या कुछ और हो गया, उस केस में प्राइस इज द मेन फैक्टर. बट इन अदर केसेस other things are important. For instance, some headphones offer better performance, large RAM, the camera. These features could be worth the high price for some people if it impacts their work or if their income is high enough. So इसने products में differentiate नहीं करा, इसने लोगों में differentiate करा है कि कुछ लोगों के लिए price नहीं important होती. जैसे लो इनकम और मॉडरेट इनकम के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, अदर पीपल के लिए नहीं होती है. फिर उसने एग्जांपल दी है, जब सर्विस लाइक मेडिकल सर्विस है तो प्राइस तो लोग सोचते ही नहीं है. तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, एंड आई हैव सीन हियर पीपल आर, व्हेन समबडी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, वी डोंट केयर अबाउट द मनी. कहीं से महंगी दवाई भी मिल रही है, वी आर गोइंग टू बाय दैट. सो वी डोंट केयर अबाउट दैट. People are usually willing to spend thousands of money and so on. But anyways, that was not my point. My point was we wanted to cover the connectors. So यहाँ पे उसने connector use करा है firstly. I would not have used firstly, but ठीक है. यहाँ पे उसका एक कंट्रास्ट वर्ड है या कंपैरिजन वर्ड है. दिस इज कमिंग बिकॉज शी इज मूविंग ऑन फ्रॉम प्राइस टू दी अदर आइटम्स, पहले अदर फैक्टर्स. तो पहले उसने प्राइस की बात करी थी, हाउवर के बाद उसने अदर फैक्टर्स की बात करी है, तो वो अदर फैक्टर्स वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. सो शी हैज़ यूज अ कंपैरिजन वर्ड. फॉर इंस्टेंस शी हैज़ यूज टू एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल, जैसे कि उसने हाई एंड फोन्स की एग्जाम्पल दी है जिससे उसने अपना पॉइंट समझाया. फिर इसने इसको बिल्डअप करते हुए एक फाइनली पॉइंट लिया है विच इज़ अ फाइनल पॉइंट इन फेवर ऑफ अदर 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 फैक्टर्स. एंड उसको समझाने के लिए भी शी हैज़ यूज्ड अ कनेक्टर टू इलस्ट्रेट. एंड देन इन कंक्लूजन जस्ट टू यू नो फॉर, उसने बोला, जैसे उसने ये बोला, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वाइटल सर्विसेज के लिए प्राइस मेन फैक्टर नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन पीपल के लिए, लिमिटेड इनकम्स के लिए, उनके लिए प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है. बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटल सर्विसेज में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो उसका ये ओपिनियन है, उसका ओपिनियन रिपीट हुआ है. सो एनी वेज द कनेक्टर्स यूज यूज, सी दिस इज अ कनेक्टर्स क्लास, जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर नाउ. Let's, I took a bad essay because I don't personally agree with this essay. So anyways, leave that out. Look at the connectors.
For points ही using finally, which I told you कि हम use करेंगे points list करने के लिए. Contrast के लिए she has used however, which we also used however to illustrate, and for instance other examples for other connectors for giving points and examples which she has. Conclusion में हमने भी in conclusion सोचा था, she has also used it. Firstly is again an example for listing the point, and taking the example of is a connector for giving an example. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही वाले connectors हैं, इनको अच्छे से कर लोगे, you can write any essay. ठीक है. I did not agree with this essay. Let me do one more essay ताकि वहाँ पे ज़्यादा clear हो. ठीक है. Okay, so let's come to this essay. In many cities, many people are living in large apartment blocks. Does this accommodation have more advantages or disadvantages? अब पढ़ो. So here she has started. अब ये वाला essay देखते हैं. This is kind of an essay that I prefer. So here she has used the word although. अब मेरे को बताओ, ये although concession है, contrast है. Is there a main opinion? Yes or no? और अगर main opinion है तो वो क्या है? अपार्टमेंट्स के फायदे नुकसान पे है. I think it's a concession word. Okay. हमारा main opinion क्या है? Okay. So our main opinion is in the favor of disadvantages or advantages? खुशबू? So advantages. Main opinion is advantages. डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं सर. अच्छा, मैं ना, अब देखो ये मेरे से गलती हुई. कंसेशन क्या होता है? मेन साइड होती है कि लेस वाली साइड होती है? जो मेन आर्ग्यूमेंट, कंसेशन का एक्चुअल मीनिंग मेन साइड जो होती है सर. वो नहीं. कंसेशन इज नॉट योर मेन साइड. कंसेशन इज एक्चुअली द साइड जो हम एडमिट कर रहे हैं. तो ऑल्दो के साथ जो लगेगा, यू वर राइट मानस, वाज एक्चुअली योर कंसेशन वाज योर वीकर साइड. कि चीपर है, फायदे तुम्हारी मेन साइड नहीं है, नुकसान तुम्हारी मेन साइड है. सो लेट मी टीच यू दिस वर्ड के कैसे यूज करते हैं, कंसेशन वर्ड्स को यूज ही कैसे करते हैं. माई फॉल्ट, आई डिड नॉट टीच दैट. सो देखो, जब तुमने कंसेशन यूज करना ना, पहले तुमने वीक साइड लिखनी है उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्दो. सो ऑल्दो आई वाज सिक, आई स्कोर्ड वेल. सो अब देखो यहाँ पे मेरा मेन ओपिनियन है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए. पर प्रॉब्लम क्या थी? आई वॉज सिक. नाउ आई वॉज सिक इज नॉट द मेन ओपिनियन, नॉट द मेन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. द मेन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि मेरे अच्छे मार्क्स आए बावजूद इसके कि मैं सिक था. तो कंसेशन के साथ तुमने लेस साइड लिखनी है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, गॉट इट. ठीक है. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ऑल्दो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ अपार्टमेंट्स, I believe the advantages are far more. So here again, I hope you're clear. The drawbacks is the concession, the less side. Our main side is advantages. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. Another word that I use for concession is despite. So again, देखो, despite the drawbacks of apartments, I believe they are they're beneficial on the whole, or beneficial for people in many ways, something like that. So again, ये despite is a concession word. इसके साथ हमेशा less side आएगी, फिर main side आएगी. Our main side is here. Normally you do not write the main side with the concession word. Concession के साथ तुम less side ही लिखते हो. अब एक और concession word है which I use a lot, which is admittedly.
अब एडमिटेडली मैं पता है कब यूज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग अ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, और मेरे लेस हैं डिसएडवांटेजेस, सो उसके साथ वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मैं एडमिटेडली यूज करता हूँ जो मेरा लेस साइड है. सो एडमिटेडली देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ जो भी चीज़ है ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. लेट्स टेक द एसेज ऑनलाइन शॉपिंग. सो जो मेरी लेस साइड है उसके साथ ये वर्ड यूज होता है. इट्स अ कंसेशन वर्ड. Admittedly में आगे कुछ नहीं आता. It does not like, it does not have two parts. And when then I'm going to my next side, I'll start the paragraph by saying, however, I believe the benefits of online shopping are far more. And then I'll list the advantages of online shopping, so on. So मैं ये वाले concession words use करता हूँ. Probably a good idea to teach you when and where I use them. I probably use, देखो, although and while तो मैं बहुत use करता हूँ. ठीक है. I use them in partial S's. जैसे ये वाला ऐसे मेरा partial था, advantage disadvantage वाला, उसमें use करता हूँ. I use it in agree disagree S's when my opinion is partial. ठीक है. I use it in when my opinion is partial. For example, if I take a case, there was an essay for you. Um, okay, foreign tourists should be charged more for visiting historical places. मतलब ताजमहल वगैरह जाने के लिए एंड म्यूजियम्स वगैरह में फॉरेन टूरिस्ट से ज़्यादा चार्ज करना चाहिए. डू यू एग्री और डिसएग्री? ठीक है. सो अब मैं तुम्हारे को बताऊं मेरा ओपिनियन क्या है. माय ओपिनियन इज कि हाँ, चार्ज ज़्यादा करना ठीक है, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं होना चाहिए. देखो, ज़्यादा का मतलब, देखो, अगर लोकल टूरिस्ट को 10 चार्ज कर रहे हो, उनको 20 कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई डू नॉट थिंक कि द डिफरेंस शुड बी ह्यूज. बट मैं कंसेशन भी दे रहा हूँ कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. या तुम ये कंसेशन मान लो कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या ये कंसेशन मान लो कि चार्ज कर लो पर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैन बी योर मेन साइड. यू कैन कंसिडर इट इन एनी वे यू वांट. सो ऐसे एसेस में जब मैंने अपना पार्शियल ओपिनियन देना है, देन ऑल्सो आई यूज एंड अप यूजिंग वाइल. सो आई probably say while it is justified to charge foreigners more than locals, I believe the difference in prices should not be excessive. मुझे नहीं लगता एक्सेसिव डिफरेंस होना चाहिए. तो उनको ज़्यादा चार्ज करना ठीक है, पर डिफरेंस इन प्राइसेस शुड नॉट बी एक्सेसिव. सो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन से एसेस में यूज़ करता हूँ कंसेशन वाले वर्ड्स. आई probably बेस्ट यूज देम इन पार्शियल एसेस लाइक आई यूज्ड इट हियर, और in a in an essay like advantage disadvantage. बैन ऐसे आता है तुम्हारे को कि मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस. वेरी कॉमन ऐसे एंड वेरी नाइस ऐसे, इजी ऐसे. अब यहाँ पे मैं पार्शियल लगाता हूँ कि while there are some drawbacks or downsides of using mobiles in public places, और ये मेरा कंसेशन आ गया. हाँ, मोबाइल फोन्स को यूज करने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं. I do not agree that they should be banned, but my main side is I do not agree that their usage should be restricted. Yeah. मैं नहीं बिलीव करता कि उनकी यूजेज को वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. सो माय ओपिनियन, उनको बैन नहीं करना चाहिए. सो लाइक दैट आई यूज दीज वर्ड्स. अब ये ना, व्हेन यू डू एसेस आई एम गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स, एंड तो मेरे साथ इनको प्रैक्टिस कर सकते हो. जब मैं एसेस कराऊंगा, यू कैन प्रैक्टिस देम, यू कैन आस्क मी कैसे यूज करना है, हम और इन पे जा सकते हैं. हियर आई हैव जस्ट लिस्टेड डाउन द वर्ड्स दैट आई यूज एंड हाउ आई एंड अप यूजिंग देम. ठीक है. um, इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स हियर that I want to cover. Okay, so I wanted to cover one essay with you.
So let's write one essay. हम लिखते हैं, हम उसके अंदर use करते हैं connectors, and let's see what kind of connectors you want to use, and then you'll get an idea कि कैसे prepare करना है, connectors को कैसे prepare करना है. You'll get a good idea. Okay, so I'll take this essay. Some people tend to take temporary jobs for they have time to do other things. बहुत सिंपल ऐसे है. कुछ लोग टेम्पररी जॉब्स लेते हैं. टेम्पररी जॉब्स का इन्होंने मीनिंग समझाया है. टेम्पररी जॉब्स का मीनिंग समझाया है कि वो फ्यू मंथ्स ईयर काम करते हैं. मतलब वो साल में 7-8 महीने काम करते हैं. ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनके पास टाइम हो अदर चीज़ें करने का. फॉर एग्जाम्पल दे हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली, दे हैव टाइम फॉर देयर हॉबीज एंड सो ऑन. वी डोंट केयर अबाउट दैट. डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? दिस इज द ऐसे. हमारे से जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि क्या इस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है टेम्प्रेरी जॉब्स के. ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं टॉपिक ही इंट्रोड्यूस करता हूँ. सो इट इज़ ट्रू दैट मेनी पीपल nowadays do temporary jobs. Just टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा. And just where they work only few months or some months in a year. That's it. So जल्दी से ना टॉपिक को पैराफ्रेज करो. अभी मैं तुम्हारे सामने ये कर भी क्यों रहा हूँ? बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग द इंट्रोडक्शन. नहीं करना है. कोई नंबर नहीं आएंगे. इसको पैराफ्रेज नहीं भी कर पाओगे अच्छे से, कोई ज़्यादा नंबर सिक्योर नहीं कर पाओगे. सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. उसके बाद मेरा ओपिनियन आने वाला है. अब मेरा ओपिनियन सोचने के लिए मेरे को पहले पॉइंट सोचने पड़ेंगे. लेट्स इमेजिन मैंने पॉइंट सोच लिया और मुझे लगता है फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो मैं अब फ़ायदों के फेवर में लिख रहा हूँ. नहीं तो पहले पॉइंट्स के बेसिस पे लिखना था. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंपैरिजन वर्ड. सो ऑल दो कंसेशन वर्ड. सो ऑल दो और वाइल कोई भी उठाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ऑल दो या वाइल को प्रेफर करता हूँ. सो ऑल दो देर आर सम ड्रॉबैक्स of temporary jobs, I believe their benefits are far more. सिंपल इंग्लिश, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. क्लियरली मैंने अपना ओपिनियन बता दिया जो मेरे से पूछा गया है. क्या फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान? मैंने बता दिया. हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स हैं. मैं मानता हूँ कुछ ड्रॉबैक्स हैं. मुझे लगता है फ़ायदे ज़्यादा है. आई हैव गिवन दी ओपिनियन क्लियरली. नो कन्फ्यूजन. इसके बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स फर्स्ट. सो आई यूज़ द कनेक्टर एडमिटेडली. कंसेशन वाले पैराग्राफ के लिए मैं एडमिटेडली यूज़ करता हूँ. So I'm going to use the word admittedly and give this. There are uh, doing temporary job. This pose certain challenges. ठीक है, मैंने लिख दिया कि टेम्प्रेरी जॉब करने के कुछ चैलेंजेस होते हैं. वो कुछ चैलेंजेस पेश करता है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द कनेक्टर्स वी यूज फॉर लिस्टिंग डाउन पॉइंट्स. अब अपना एक सेट याद कर लो जो तुमने करा है. मेरा एक सेट है, जैसे कि मैंने अपना एक सेट बनाया हुआ है. टू बिगिन विथ एंड इन एडिशन. ये तब मैं यूज करता हूँ अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हो. अगर तीसरा पॉइंट आ जाता है देन आई जस्ट पुट अ मोर ओवर एट द एंड एंड आई लिस्ट डाउन द थर्ड पॉइंट. सो मैंने यहाँ पे दो ही लिखने हैं बिकॉज ड्रॉबैक्स इज माई लेफ्ट साइड, एडवांटेजेस मेरी मेन साइड है. तो मैं ड्रॉबैक्स में दो से ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ, नहीं तो मेरा ऐसे वीकन हो जाएगा. मैं कैसे शो करूँगा कि फ़ायदे ज़्यादा है? सो आई एम गोइंग टू यूज दीज लिस्टिंग पॉइंट्स कनेक्टर्स टू बिगिन विद एंड इन एडिशन. दे आर वेरी गुड फॉर्मल वर्ड्स. तुम्हें कोई डाउट डरने की जरूरत नहीं. बहुत अच्छे वर्ड्स हैं टू बिगिन विद एन एडिशन. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज कनेक्टर्स इज तुम्हारे को सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते. देर आर अदर कनेक्टर्स बट उससे सेंटेंस फॉर्मेशन में तुम्हें ग्रामेटिकली करेक्ट होना पड़ता है. वो कई बार गड़बड़ हो जाती है. सो आई यूज दिस. देन आई कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. Here I again use a concession word despite. कंसेशन लिख के मैं अपनी मेन साइड लिखूंगा. सो आई से डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव, आई बिलीव temporary jobs are beneficial on the whole. So on the whole these jobs are beneficial, or overall you can write. So I've given my main side कि I believe temporary jobs are beneficial.
पर जब डिस्पाइट के साथ शुरू करा था तो ड्रॉबैक्स वाला बताया था। कंसेशन कनेक्टर है, कंसेशन के साथ ही लग रहा है, पर उसके बाद मेन साइड आ रही है, आई बिलीव टेम्पररी जॉब्स आर बेनिफिशियल ओवरऑल। देन आई एम गोइंग टू गिव माई पॉइंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अनदर सेट ऑफ लिस्टिंग कनेक्टर्स जहाँ पे मैंने अपने फायदे बताने हैं। वो मेरा सेट ऐसे है। द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट, ठीक है, देन आई यूज सेकेंडली, एंड देन आई यूज फाइनली। ये मेरा एक सेकेंड सेट ऑफ कनेक्टर्स है, दैट्स व्हाट आई यूज। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पुट दैट हियर। प्लीज रिमेंबर दैट के बाद कॉमा नहीं आता है, secondly and finally. Okay. Then you're going to use your connector for conclusion, in conclusion, and I would like to reiterate. And then again, you are going to use your connector, concession connector, because tomorrow again partial opinion aane wala hai. Here I end up using while temporary jobs have certain, challenges or certain drawbacks or downsides. I believe their benefits certainly outweigh the drawbacks. इनके benefits ज़्यादा हैं drawbacks है. That's it. So that's how I end up using the connectors. कौन से concession connectors मैं use कर रहा हूँ, कौन से listing वाले use कर रहा हूँ, I have shown you, and how do you prepare your connectors, I've shown you. If you have any doubts, please let me know. अच्छा चलो. So what do I do? I'll tell you what are you going to do. अब तुमने करना क्या है सबसे पहले आज की क्लास के बाद. So what are you going to do first of all? सबसे पहले तो लिस्टिंग पॉइंट्स वाले अपने कनेक्टर्स के 3 सेट बना लो. ठीक है, मतलब अगर तुम्हें 3 सेट्स आने चाहिए, मतलब 3 3 पॉइंट्स के लिए तुम्हें 9 कनेक्टर्स चाहिए एक तरह से. पहले तीनों के लिए एक फर्स्ट पॉइंट के लिए कनेक्टर लेना है. यस, आई शेयर दिस इन द ग्रुप. ठीक है, सो पहले अब तुम कोई ले लो. फॉर एग्जांपल फर्स्टली ले लिया. फर्स्टली का तुम्हारा सेकंड वाला हो गया सेकेंडली, और सेकंड अनदर सिग्निफिकेंट रीजन इज दैट, एंड देन यू कैन पिक अप thirdly और यू कैन पिक अप फाइनली. तो तुम्हारा एक सेट हो गया रेडी. नाउ यू कैन पिक अप अनदर सेट which is to begin with. Then you can have an addition, and then you can have what is more. Yeah, additionally what is more ले सकते हो for the third point, or you can pick up besides this for the third point. ये तुम्हारा second set हो गया. Third set तुम ऐसे यूज कर सकते हो. The primary reason is that, then you can say furthermore, and then you can have a final point to consider is that, or lastly, or additionally you can have that as the third connector. So तुम्हारे 3 connectors के set points को list करने के लिए ready हो गए. That's enough. You don't need to do anything else. Done. अब ये तुम अपने आप बना लो, because this file I'm going to share, so you choose yours, your wish. ठीक है. सेकेंड, देन कम फॉर इलेबोरेशन. इलेबोरेशन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ना, जो पॉइंट्स हैं, जब तुम पॉइंट को इलेबोरेट कर रहे हो, तुम एक दो अपने स्टिक कर लो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम राइटिंग डाउन वन पॉइंट आई यूज इन अदर वर्ड्स. जब मैं एक पॉइंट को इलेबोरेट करता हूँ एक पैराग्राफ में, वरना मैं यूज ही नहीं करता इलेबोरेशन के लिए. इन मतलब एडवांटेजेस में एक बार यूज करता हूँ इलेबोरेशन वाला कनेक्टर, एंड डिसएडवांटेजेस में एक बार यूज करता हूँ, सिर्फ 2 बार ये यूज करता हूँ, वरना बिना ऐसे लिखे भी हो जाता है इलेबोरेट पॉइंट. सो आई यूज ओनली 2 वर्ड्स हियर, इन अदर वर्ड्स एंड टू इलेबोरेट. मैं और कुछ नहीं यूज करता हूँ. एक बार मैं पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए यूज करता हूँ इन अदर वर्ड्स, द सेकेंड टाइम किसी और जगह मैं यूज करता हूँ टू इलेबोरेट. इसके अलावा तुम्हें ये ज़्यादा यूज नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बार बार इसके एग्जाम्पल्स दिखाए हैं. प्लीज रिमेंबर, जब ये वर्ड यूज करने हैं, नया सेंटेंस यूज करना है, बनाना है. इसको पुराने सेंटेंस के साथ कंटिन्यू मत करना. जब मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे ये एग्जाम्पल दिए, आई हैव ऑल्सो शोन यू एग्जाम्पल्स इन दी एसे. दैट्स इट. ये वाले कनेक्टर्स फिनिश हैं. लिंकिंग डिवाइसेस फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज व्हेन यू आर एलैबोरेटिंग अ पॉइंट. तुमने एक पॉइंट लिखा,
और तुमने बताया उसको समझाना है, जैसे कि तुमने रीजन बताना है कि वाई पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, तो तुम ऐसे लिखोगे, नाउ डेज मोस्ट पीपल हैव देयर ओन प्राइवेट व्हीकल्स। आजकल मोस्ट पीपल के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं। एज अ रिजल्ट पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसका ये नतीजा हो रहा है कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो तुम्हारा पॉइंट हो गया, तो तुमने समझा दिया इसको कैसे यूज करना है। तो दिस इज डन बाय इलैबोरेटिंग अ पॉइंट। एक पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए तुम ये यूज करते हो जब तुमने कोई रिजल्ट दिखाना हो किसी चीज का। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू यूज इट, यूज हो जाता है तो हो जाता है, पर आना ही चाहिए कैसे यूज करना है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग एज अ रिजल्ट। Concession and contrast are the most important connectors. Here, you will make grammatical mistakes. When you use them, I'll check them and give you feedback on them अगर तुम इनको गलत यूज कर रहे हो, और फिर तुमने वो अपने नोट्स में कंसिडर करना है और इसको ठीक करना है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जब डिफरेंट एसेस हम करेंगे, मैं तुम्हारे को ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स की यूजेज भी साथ साथ में कराता जाऊंगा। इफ आई डू इट नाउ ना, पता बहुत आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल यूजेज सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू यूज इट व्हेन यू लर्न द एक्चुअल यूजेज, वो साथ साथ में ही होगी। ओके, सो दैट्स इट। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स नाउ ऑन दिस पार्ट, प्लीज लेट मी नो। कोई भी डाउट्स हैं पूछो। Okay. I want to ask how many of you are for academic students? कौन कौन है academic में, कौन कौन है? So I'm academic. Okay, Khushbu. Who else? You can type in the chat if you don't want to. I'm also for academic. Okay. Who else? Acha, chalo. So now I'm going to cover some connectors which are mainly used for academic, but तुम भी सीख लो. I would say everyone would learn something from this. ठीक है, थोड़े comparison words का मुझे तुम्हें फर्क बताना है। ठीक है, तो चलो, let me type it out. These are the four connectors that I want to teach. ठीक है, ये चार कनेक्टर्स ही सिखाने हैं, वेरी सिंपल, सब सीख लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू व्हाई। अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस बताने लगा हूँ और तुमने मेरे को बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, रीजन नहीं भी बताओ तो चलता है मेरे को, अब बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है। पहले वाला तो सही गलत है। पहला वाला गलत है। ओके हाँ देन, जी। ओके व्हाट अबाउट While is not correct, sir. श्वेता, कौन सा गलत है? First one, फर्स्ट वन। ओके, First one. फर्st one. Okay. Okay. So why is the first one wrong? Can now someone tell me the reason why the first one is wrong? बताओ। नो वन? ट्राई, कुछ भी रीजन दे दो जो तुम्हें लग रहा है। द साउंड नहीं ठीक कर रहा। ठीक है, ए से साउंड नहीं ठीक कर रहा, बी वाइल के बाद नॉट बैडमिंटन सिर्फ इतना बोल देने से या इतना लिख देने से वो बात आधी अधूरी सी फील हो रही है। लाइक अच्छा, मैं वो थोड़ा कंप्लीट सेंटेंस एक आना चाहिए, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ रहा। सर वाइल का हम कंसेशन के लिए यूज करते हैं। नहीं, फाइल कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, कंसेशन भी कंपैरिजन भी, दोनों। आप बताओ, अब ठीक है कि अब नहीं? ठीक है, अब ठीक है। मैं एक तो ठीक लगा। ओके,
तो ना अब now to clarify this point, I would want to show you the meaning of while in an Oxford dictionary. ठीक है? एंड तुम्हें एक बात नोट कराऊं, ठीक है? Incomplete. Okay. So, first of all, it is calling while a conjunction. Can someone tell me what's the meaning of a conjunction? So joining two sentences. Very good. So, while joins two sentences, it also compares. ठीक है? But what I wanted you to learn here, when it is used to contrast, it is used to contrast two different things. अब प्रॉब्लम पता है क्या थी मेरे पहले सेंटेंस में? मैं अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर कर रहा था. वाइल नहीं करता ऐसा. वाइल हम अपने आप को अपने आप से नहीं कर सकता. वाइल किसी और के साथ कर सकता है. वाइल में दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल माई ब्रदर does not like football. I could have used while here. Why? Because the subject is different. Here I'm comparing I with my brother. The problem here is I'm comparing myself with myself. मुझे कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है. सो यहाँ पे वाइल का यूसेज नहीं आता. सो पहली बात अभी अंडरस्टैंड करो, वाइल जो होता है वो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है. बट जो होता है वो एक्चुअली सेम थिंग को भी कंपेयर कर सकता है, डिफरेंट को भी. बट मैं कहता हूँ कि तुम इसको कॉम्प्लिकेट मत करो. बट को रख लो कि सेम थिंग के कंपैरिजन के लिए, और वाइल को ले लो डिफरेंट थिंग्स के कंपैरिजन के लिए. इफ यू हैव दिस रूल ना, यू विल नेवर मेक इट रॉन्ग. अब ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन सो मेनी प्लेसेस. बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे तुम्हारे डिस्कस ऐसे में तुम वाइल लिखते हो वेरी बिगनिंग में, कि कुछ लोग ये मानते हैं वाइल अदर लोग ये मानते हैं. टू डिफरेंट पीपल ना. कुछ लोग अदर पीपल, वाइल सम पीपल अदर पीपल. सो यू यूजिंग अ वाइल डिफरेंट पीपल. ठीक है? सो इन दिस केस वी आर यूजिंग वाइल. ठीक है? बट जो होता है दोनों में चल जाता है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको सेम थिंग के लिए रख रहे हैं जब हम सेम थिंग का कंपैरिजन करते हैं. अब मैं तुम्हारे को जो जिन लोगों का टास्क 1 है, ग्राफ है एकेडमिक में, मैं उनको इसकी यूजेज के लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ. देखो जैसे ऐसे ऐसे लिखा, सेल ऑफ लैपटॉप्स इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू मार्च. ठीक है? बट देन डिक्रीज. अब यहाँ पे ना मैं बट लिख रहा हूँ rather देन राइटिंग वाई. अब मैं वाइल क्यों नहीं लिख रहा हूँ? आई होप इट इज क्लियर. बिकॉज सेल ऑफ लैपटॉप्स की बात ही हो रही है. पहले भी सेल ऑफ लैपटॉप्स की बात थी, बाद में भी सेल ऑफ लैपटॉप्स. सेम थिंग है. आई एम नॉट यूजिंग अ वाइल, आई एम यूजिंग अ बट. और अगर यहाँ पे होता इंस्टेड ऑफ ये होता कुछ और होता, तो यहाँ पे मैं वाइल लगाता. बिकॉज पहले मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप्स की, बाद में मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर्स की. डिफरेंट थिंग्स हो गई. तो डिफरेंट थिंग्स के लिए मैं वाइल लगाता हूँ, सेम थिंग के लिए मैं बट लगाता हूँ. इज दिस कंपैरिजन क्लियर कि वाइल कब यूज करना और बट कब यूज करना है? और एनीवन हैज अ डाउट है? अच्छा, मेरा पहला आंसर करो करो. इज वाइल क्लियर? वाइल क्लियर है कि डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन करता है? यस सर. यस. क्लियर? नो वन हैज अ डाउट? वेरी क्लियर, सिंपल. चलो अब वाइल एंड बाय कंट्रास्ट में फर्क करते हैं. Let me make two sentences. बताओ, पहले ये बताओ ये ठीक है कि गलत है? खुशबू, राइट और रॉन्ग? So I think it's correct. Okay. What do others think? Does anyone think it's wrong?
So I think it's wrong. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कोई ओपिनियन रखो, गलत बोलो सही है कि गलत है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। रॉन्ग। रॉन्ग। ओके, अदर्स, कुछ भी जवाब, हाँ या गलत या सही, बस इतना जवाब चाहिए मेरे को, रीजन भी नहीं पूछ रहा। एनीवन? ओनली थ्री पीपल रिप्लाइड। देयर आर एट ऑफ यू इन माय क्लास। हाँ, रॉन्ग। ओके, अच्छा, अब कोई वॉलंटियर करेगा, रीजन, रीजन रॉन्ग क्यों है? दिनेश, डू यू हैव अ रीजन? सर यस दोनों लाइक इस लाइन में आप भी फुटबॉल लाइक कर रहे हो, ब्रदर भी फुटबॉल लाइक कर रहा है, तो कंपैरिजन तो हुआ अच्छा, नहीं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं हाँ लाइक करा उसको, डज नॉट लाइक कर दे, वो तो गलती हो गई मेरे से। ठीक है, अब ठीक है। सर ये सेम चीज के लिए आ गया ना? नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक एक डिफरेंट है, यहाँ पे मैं आई है। हूँ। हाँ जी ये ठीक है। ये ठीक है, अब सबके लिए ठीक है कि नहीं? अब किसी को गलत लग रहा है तो बताओ। No, sir, it's correct. करेक्ट। ठीक है, तो गलत है ये, और मैंने अभी तुम्हें बताया था क्यों गलत है, तो दोबारा तुम्हें बताता हूँ कि क्यों गलत है। चलो आ जाओ, लेट्स डू इट। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? वाइल क्या है? कंडीशन, कंजंक्शन क्या काम करता है? दो चीजों को कनेक्ट। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। यहाँ पे इसने कंजंक्शन का काम नहीं करा, सो इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा नहीं। सी, यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है, कंपैरिजन तो कर ही रहा है, वो तो करता ही है, बट ज्वाइन भी करता है सेंटेंसेस को। दैट इज द मेन रोल, वो भी उसका रोल है, इट हैज टू रोल्स। प्लीज डू नॉट थिंक कि उसका एक ही रोल है, उसके दो रोल्स हैं, दोनों फुलफिल होने चाहिए। इसलिए ये सेकेंड सेंटेंस गलत है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा और फिर वाइल डालूंगा। नाउ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई द फर्स्ट वन वाज रॉन्ग? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, कि जब मैंने पहले लिखा था वो गलत क्यों था? यस, क्लियर। अच्छा, अब अब मैं तुम्हारे को एक बताता हूँ, जो एक वर्ड है जो कंपैरिजन करता है पर कंजंक्शन नहीं है, वो क्या है? बाय कंट्रास्ट। तो लेट्स इमेजिन तुमने दो सेंटेंस लिखने हैं, तुमने उनका कंपैरिजन करना है, पर तुमने उनको जॉइन नहीं करना, देन यू विल एंड अप यूजिंग बाय कंट्रास्ट। सो बाय कंट्रास्ट, माय ब्रदर डज नॉट। So that's the difference between while and by contrast. They are both, all these words are used for comparisons, but by contrast does not join sentences as it is not a conjunction. It will not join sentences. It does not perform that role. That's it. That's the difference. और कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, बाय कंट्रास्ट भी डिफरेंट चीज़ों का ही करता है, सेम चीज़ का नहीं करता है। ठीक है, बाय कंट्रास्ट कंजंक्शन का काम नहीं करता। अगर तुम बाय कंट्रास्ट यूज करोगे, तुम दो सेंटेंसेस लिख के आओगे। अगर तुम वाइल यूज करोगे, तुम दो सेंटेंस नहीं एक सेंटेंस लिख के आओगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट व्यूज एक ही सेंटेंस में जुड़ जाएंगे। बाय कंट्रास्ट में दोनों ऑपोजिट व्यूज दो सेंटेंसेस में आएंगे, पहले सेंटेंस में पहला व्यू, दूसरे सेंटेंस में दूसरा व्यू। वाइल वाले में कॉमा से पहला 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 व्यू, कॉमा के बाद दूसरा व्यू। सो दैट्स द पॉइंट। So, anyone has a doubt here, please let me know. नहीं तो I'll move forward to the next connector. तो वाइल अब ये तो कंपैरिजन के लिए हमने देख लिया कि हाँ हम कैसे यूज करेंगे। हाँ, इससे पहले हम जब कंजेशन के लिए कर रहे थे, कि जब हम दोनों पॉइंट्स अपने रख रहे थे, तब भी वो उसमें कंजंक्शन। तो कंजेशन तो था, पर उसमें हम वाइल को स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे, हाँ लाइक हाँ, वाइल आई लाइक फुटबॉल माय ब्रदर डजंट लाइक फुटबॉल। नहीं तो वो भी कॉमा के साथ वो कंसेशन नहीं दो था, कनेक्ट। कंसेशन नहीं था, वो भी कंपैरिजन ही था। वाइल अच्छा देख, वो भी। वो उसमें कोई मेरा मेन ओपिनियन थोड़ी है, वो तो तू दो चीजों को कंपेयर कर रहा है। सो स्टार्टिंग में भी यूज हो या सकता है कंपैरिजन के लिए।
ओके हाँ, ओके कंसेशन देख, मैं देखो एक उसका बताता हूँ, देख कंसेशन सो में। ये हाँ कंसेशन में यूज हो गई स्टार्टिंग में तो चलो हो जाएगा कंसेशन में यूज होगा कंसेशन में लेट्स से while online shopping has some drawbacks हाँ I still prefer buying it online तो हाँ, ये कंजेशन हुआ कि नहीं हुआ कंसेशन हुआ, तेरी मेन साइड है तो फिर कंजेशन हुआ हाँ जी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेशन का काम कर रहा है, तो ठीक है। तो इसमें तो दो इसमें इसमें तो यही लगेगा, वाइल लगेगा, बिगनिंग में लगेगा, इसमें मिडिल में नहीं आता वाइल। ओके ठीक है ठीक है। जब जब हाँ दूसरा जी जब दूसरा जो कंपैरिजन वाला है वो वाइल मिडिल में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। गॉट इट गॉट इट। सो और इसके अंदर वो टू सब्जेक्ट्स नहीं होते, वो वाला वो कंसेशन है, वो कंपैरिजन है ही नहीं। यू गेट द पॉइंट। जो हाँ जी सर वो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाला, वो लॉजिक कंसेशन में लग ही नहीं रहा, क्योंकि वो या वाला लॉजिक वो कंपैरिजन का लॉजिक है। वो तब लगता है जब मैं वाइल को एज अ कंपैरिजन यूज करता हूँ, ना कि मैं वाइल को एज अ कंसेशन यूज करता गॉट इट हूँ। गॉट इट। ठीक है। हाँ जी एंड द फाइनल कनेक्टर आई वांट टू टीच इज हाउ बट के साथ, बट की तरह सेम चीज को कंपैरिजन करता है, सेम थिंग, बट अगेन इट्स नॉट अ कंजंक्शन, सो इट इज नॉट गोइंग टू कंबाइन द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई लाइक फुटबॉल, और बच्चे करते हैं, ठीक है, हाउ आई डू नॉट लाइक बैडमिंटन। अब ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ मेरा ही कंपैरिजन मेरे साथ हो रहा है, सेम सब्जेक्ट तो है, पर हाउवर सेंटेंसेस को जॉइन नहीं करेगा, इट विल नॉट, बिकॉज इट इज नॉट अ कंजंक्शन। वो काम तुम नहीं करवा सकते। तो हाउवर तुम्हें नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो ये है, हाउवर विल नॉट जॉइन सेंटेंसेस। ठीक है। हाउवर तुम सेंटेंस के मिडल में डाल दो, वो चलता है, वो पिछले सेंटेंस के साथ ही कंपैरिजन कर रहा है, पर वो दो ऑपोजिट लाइनों को ज्वाइन नहीं कर रहा। जैसे देखो, दो ऑपोजिट लाइन कहाँ है? ये है फुटबॉल वाली लाइन कि मुझे फुटबॉल पसंद है, ये लाइन कहती है मुझे बैडमिंटन नहीं पसंद है। ये दोनों लाइनों को हाउवर नहीं ज्वाइन करने वाला। दैट्स द मेन रूल। हाउवर डज नॉट इज नॉट अ कंजंक्शन, इट विल ऑलवेज कीप टू लाइन्स। हाउवर को मैं एग्जाम्पल भी दूंगा ना, मैं दो लाइनों से दूंगा, मैं एक लाइन में दे ही नहीं सकता एग्जाम्पल। So, if I give you an example, let's see. Let's again go to Oxford. ठीक है। देखो, we thought the figures were correct. How we have now discovered some errors. देखो, दो sentences है, ठीक है, because it is not a conjunction. So, ठीक है, यहाँ पे it is used as an adverb. ठीक है, वो अलग चीज है, वहां पे यूज होता है, हम वो वाला कर ही नहीं रहे यूज, उस पे मत जाना। यहाँ पे भी देखो, ही वॉज फीलिंग बैड, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। ही वेंट टू वर्क हाउवर, पर फिर भी वो काम पे गया। अब हाउवर सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, वो मत देखो। जो टू ऑपोजिट व्यूज हैं, वो पहला पहला व्यू यहाँ पे, ही वॉज फीलिंग बैड मतलब उसकी तबीयत खराब थी। ही वेंट टू वर्क हाउवर, ये सेकेंड व्यू है। तो हाउवर कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों व्यूज के बीच में, दोनों सेंटेंसेस के बीच में, पर उनको ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है। और ही के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? हाउवर। सेम थिंग के बीच में, सेम चीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मैं यूज करता हूँ हाउवर, लाइक आई टोल्ड यू। सो ही वॉज फीलिंग बैड, ही वेंट टू वर्क हाउवर। वी थॉट द फिगर्स, हाउवर वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर्स। वी एंड वी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ज्वाइन नहीं होता हाउवर से। ठीक है। अगर मैं बाय कंट्रास्ट का एग्जांपल दूं, तो वो ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करेगा, पर ज्वाइन नहीं करेगा सेंटेंसेस को। ठीक है। सो फोर थिंग्स हैं यहाँ पे ना, वो लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है। ओके, लेट मी गिव। जैसे यहाँ पे, ऑन एवरेज गर्ल्स स्पेंड 4 hours a week chatting to the friends on the phone. In week, very few of the boys spend more than 5 minutes a day talking to their friends. So ये कंपैरिजन है, जॉइन नहीं हो रहा। देखो, सेंटेंसेस आर सेपरेट। अब तुम वेर एज या वाइल को देखो, तो देखो यहाँ पे कॉमा आ गया, सेंटेंसेस जुड़ गए। बॉयज प्रेफर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वेर एज गर्ल्स सीम टू एंजॉय कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। So, while and whereas are conjunctions too. They join sentences.
इन कंट्रास्ट इज नॉट अ कंजंक्शन. इन कंट्रास्ट ऑफ वाइल वेराज क्यों लग रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफरेंट है. पहले सब्जेक्ट गर्ल्स है, बाद में सब्जेक्ट बॉयज है. पहले सब्जेक्ट बॉयज है, बाद में सब्जेक्ट गर्ल्स है. तो डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, पर ये दोनों एक बाय कंट्रास्ट ज्वाइन करता है और वाइल ज्वाइन नहीं करता है. तो ये फर्क है दोनों के बीच में. ठीक है. ये ना फॉर टास्क वन स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कराऊंगा फिर तो मेरे को पूछोगे मेरा हाउवर क्यों काट दिया, मेरा वाइल क्यों काट दिया, मेरा बट क्यों काट दिया. तो ये रीज़न होता है, वहाँ पे मैं काटता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ ना हाउवर मत यूज़ करो, वाइल यूज़ कर लो. फिर पता है तुम मेरे से क्या पूछते हो, बच्चे क्या पूछते हैं, सर ये भी तो कंपैरिजन वर्ड है. मैं बोलता हूँ हाँ ये भी कंपैरिजन वर्ड है, पर ऐसे नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है, उनकी यूजेज में डिफरेंस है. तो उनकी यूजेज में ये डिफरेंस आता है. हाउवर सेम चीज़ों के लिए होता है ज्वाइन ना करना हो, बट सेम चीज़ों के लिए होता है पर ज्वाइन भी करना हो. वाइल डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है ज्वाइन करना, बाय कंट्रास्ट डिफरेंट चीज़ें ज्वाइन नहीं करना. सो ये लॉजिक है इन कनेक्टर्स का. सो आई होप दे आर क्लियर. और ये ऐसे ही होते हैं, जब तुम गलतियां करोगे मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा, जब तुम ग्राफ लिख के दोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि सर ने बताया था ये डिफरेंट है, इनको ऐसे यूज़ नहीं करना. ओके. एनी वन हैज एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. Anyone, any doubts? Okay, so we'll end the class here. Okay. Um, कल मैम ने classes लेनी है दोनों. So 4 to 6 class, ma'am is first going to cover writing and then ma'am is going to cover reading. Today there was only a class on connectors. There's no additional class. Agree, disagree? ऐसे में partial दे सकते हैं? Yes, you can give partial. I give partial many times. ठीक है मानस, partial आप दे सकते हो, पर clear होना चाहिए partial. पता है गलती क्या होती है? मैं बताता हूँ गलती कैसे होती है. जैसे ना ऐसे आता है, गवर्नमेंट शुड बैन बॉक्सिंग. ठीक है. बच्चे बच्चे पता है क्या लिखते हैं? वाइल आई बिलीव गवर्नमेंट शुड बैन बॉक्सिंग, आई डू नॉट बिलीव गवर्नमेंट शुड बैन बॉक्सिंग. ऐसे नहीं आता, बिल्कुल उल्टा नहीं लेना होता. तो पहले अपना एक मेन ओपिनियन लिखो, बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए. तो तुमने जैसे बोला नहीं होना चाहिए, तो तुम पहले बोलोगे हाँ बॉक्सिंग के कुछ नुकसान है, पर बैन नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो योर ओपिनियन इज क्लियर. व्हाट यू आंसर्ड, यू हैव गिवन अ प्रॉपर डिसएग्री. बैन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा था बैन होना चाहिए, पर तुमने बोला हाँ मैं मानता हूँ बॉक्सिंग के नुकसान है, हाँ मैं मानता हूँ बॉक्सिंग के नुकसान है, पर बैन नहीं होना चाहिए. तो उसका पार्शल ऐसे बनता है. तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल ऑपोजिट बना देते हैं. पहले पहला पैराग्राफ लिखा होता है बॉक्सिंग को बैन करना है, क्यों करना है. फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा होता है बॉक्सिंग को नहीं बैन करना, क्यों नहीं बैन करना. वो सेंसलेस बात हो जाती है. दैट डजंट मेक सेंस, राइट. बैन करना भी है नहीं भी करना है, ऐसे नहीं बनाना. सो पार्शल डज कम, बट पार्शल में बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है बनाने के लिए. दोनों ऑपोजिट नहीं करते ना. ठीक है. आई होप दैट मेक्स सेंस. ओके. एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? Okay, so we'll end the class here and we'll continue tomorrow.